I used to feel bad when people were talking about, you know, I gained weight all of a sudden. तो उसका लोग मजाक बना रहे थे कि मैं मोटी हो गई तो उसको लेके that I don't care about myself. And they did not know कि मेरा वेट बढ़ा क्यों. मेरा वेट खाने से नहीं बढ़ा था, मेरा वेट मेडिकेशंस वगैरह से बढ़ा. एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे. I was dealing with anxiety attacks and BP fluctuations. वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था. So I consulted with a neurologist, not a therapist, not a psychiatrist, directly a neurologist, and I was put on a medication. And after 2-3 months of medication, they realized कि medicines गलत है. Because they separated when I was around 6 years old. तो मुझे तो आधी चीज़ें याद ही नहीं है. तो I just feel कि you can't miss something which you don't remember or you never had. I don't want to know. I don't want to know it. I don't want to know what went wrong. I don't want to know anything. I'm just happy that my dad is happy here and my mom is happy somewhere. मैं उनसे भी मिली हूँ. ऐसा नहीं है कि हमने एकदम कट ऑफ कर लिया. I did not need a mother. My sister didn't. We didn't need a mother because we are now grown up. हमें जिस एज में मॉम की ज़रूरत थी एक्चुअली वो हमारे लिए डैड ने फिल कर दिया था. So we didn't need a mother, but my dad needed a companion for his life. Because there is an emotional maturity that actually surpasses the age that you have. ये पूरा वो पेन है जो लाइफ में मिलता है जो आपको बहुत डीप इंसान बना देता है. And the things that they've said about me, you know, people said about me when I was in Big Boss, it was very hurtful, very hurtful. Like it changed me as a person. That time there was a friendship that got affected, and then having to answer to everybody from both sides. Did that come to you ever? Like, did that get to you ever? Today I'm sitting with somebody who is a unique mix of power and vulnerability. She could be judged for her vulnerability and vulnerable situations. In fact, I hate to admit it that I possibly have judged her too. And मेरी मम्मी बोलती है कि माफ़ी मांगना किसी को छोटा नहीं बनाता. So I will start off the interview by saying a huge sorry to Sumbul Taqir Khan because I have recently realized in the last 1.5 years that Big Boss is a show that makes you judge people and have opinions which possibly are not true. It's not just you. I think I had opinions about Tejasvi, I had opinions about Hina, and all of them have turned out to be really untrue. And some of the people who I supported, बहुत पहले, who I realized that were also untrue. But nevertheless, thank you, Sumbul, for joining us on this episode of the Unspoken podcast. We call it the Unspoken because there are many things जो एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ना रह जाता है. बातें नहीं होती है उन सब चीज़ों के बारे में. तो शुरू से शुरू करते हैं. When is it that you realized that you want to do acting and you want to become an actor? कब लगा? एक्टिंग चालू करने के 2 साल के बाद. ओह. हाँ, पहले ज़बरदस्ती कर रही थी मैं बस कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं. फिर 2 साल के बाद अचानक से एक दिन ऐसा हिट हुआ मुझे कि जो मेरा सपना था करने का, क्योंकि मुझे सिर्फ डांस करना था. बट 2 साल एक्टिंग करने के बाद मुझे अचानक से लगा कि यार ये करते हुए तो सब करने का मौका मिल रहा है. मतलब यू नो you become like a superhero. You can do anything. You can live different kind of lives. You can do action. आप डांस कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, भले आवाज़ आपकी ना हो, but you can do all of that. So I felt like कि अभी इससे अच्छा क्या होगा. And then I fell in love with acting and I'm still in love with it. Which is ये कितने साल पहले की बात है? ये जब मुझे realization हुआ वो मुझे 2016 में हुआ था. Okay. और ये 2014 से आप? हाँ. पहली एक्टिंग की ब्रेक कैसे मिली? Like how did you like because you were what 9 years old? 10 years old? Yeah. So what happened was my younger sister Sania, उसको जोधा अकबर में एक रोल मिला था which was छोटी अनारकली. एंड हम लोग करजत में थे एंड ऑफ कोर्स मैं भी छोटी थी तो मुझे यहाँ पे छोड़ के तो जाते नहीं, तो मैं भी साथ में चली गई थी. तब उनको वहाँ पे ही एक और कैरेक्टर की ज़रूरत थी विच वॉज सलीम्स सिस्टर हु वॉज डेफ एंड म्यूट. एंड तो उसके लिए कास्टिंग चल रही थी एंड मैं एकदम अवेलेबल सामने खड़ी हुई. तो वहीं पे उन्होंने यू नो ऐसे ऑडिशन वगैरह ले लिया मेरा एंड लॉक हो गई तब के तब एंड वैसे ही शूट भी चालू हो गया. इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए, वो मेरा सबसे पहला काम था एंड आई हैवंट स्टॉप्ड वर्किंग सिंस. बट वो 2 साल शूट पे जाना अच्छा लगता था? नहीं, मुझे काम करना नहीं अच्छा लगता. मुझे जब तक डांस करने मिल रहा तब तक मैं खुश रहती थी, लेकिन एक्टिंग में मुझे इतना नहीं होता था. आई यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं. Sumbul, you know, when we talk about this show, इतनी सी खुशी,
जिंदगी में खुशियों का ना मायना हर किसी के लिए अलग है, तो आपके लिए खुशी का मायना क्या है? मेरे लिए इट कैन बी एनीथिंग, मतलब इट डजंट हैव टू बी कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज़ हो जिससे मुझे खुशी मिले। हाँ, सपने डेफिनेटली है कि यार ये चीज़ खरीदनी है या फिर ऐसा काम करना है जिससे खुशी मिलेगी, बट उसके अलावा जो अभी मेरी रोज़ की जो खुशियाँ हैं, नाउ दैट आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, मैं रोज़ शूट पे जाती हूँ, सो व्हेन आई कम बैक होम माई डैड ही वो मेरे बगैर खाना नहीं खाते, so he waits for me every night. And जब मैं घर पहुंचती हूँ तो पापा is the one who opens the door with a smile on his face and he is like कि चलो हाथ मुंह धो के आओ खाना खाते हैं। so एक वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अभी मेरी कैट को मेरे साथ ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो whenever she sees me at home तो वो आ जाती है खेलने के लिए, वो भागती रहती है मेरे पीछे, बहुत मारती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे मज़ा आ रहा है। बट या सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सानिया अचानक से आके अपनी लाइफ का अपडेट देती है एकदम, सीज़न 2 सीज़न 3 उसका चलता रहता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो आई थिंक हम भूल जाते हैं जब हम पूरे टाइम घर पे रहते हैं, बट आप जब थोड़ा सा घर से दूर रहना चालू करते हो ना, तो वो चीज़ें जो नॉर्मल थी पहले वो स्पेशल बन जाती है। Yeah, that is so true, beautifully put, because वही चीज़ें मायने रखती है eventually, right? बट क्या आपको कभी-कभी लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आज के ज़माने में, जिस ज़माने में हम जिस दौर में हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज सो स्क्रूटिनाइज्ड, एनालाइज्ड, एंड इट्स हैपेंड टू यू, राइट, विथ योर इमोशंस, विथ एवरीथिंग ऑन अ नेशनल लेवल, डू यू फील लाइक पीपल have to hide their emotions sometimes? Like happiness आप दिखा सकते हो, पर अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या आपको किसी चीज़ पे आपको दुख हो रहा है, तो आपको एज एन आर्टिस्ट हमेशा उसको दबा के रखना पड़ता है कि लोग तो वो देख के जजमेंट बना देंगे। हाँ, क्योंकि उनको नहीं पता है ना कि हम किस वजह से गुस्सा कर रहे हैं या फिर हम किस वजह से उदास है, वो तो अपना कुछ भी बना लेंगे। अभी ऐसा बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं कि इफ समबडी इज अपसेट अबाउट समथिंग एल्स एंड कोई भी ऐसा वीडियो बना के उसमें डाल देगा कि इनका ब्रेकअप हो गया, जबकि वो बेचारे को भूख लगी थी। मतलब यू नेवर नो, ऐसा होता है। एंड उसके साथ साथ देयर इज़ वन मोर थिंग कि इमोशंस को लेके जब बात आती है, आई जस्ट फील कि अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे तो ऐसा हो गया है कि पीपल थिंक दैट बीइंग रूड इज़ कूल। या एंड काइंडनेस इज फेक, दैट्स इवन वर्स। सो इट्स लाइक कि आपको गालियाँ, आपको गंदे गंदे कमेंट्स, आपको बुराइयाँ बहुत हर एक कमेंट सेक्शन में मिलेंगी, हर जगह। एंड वो लोग, मतलब वो है कौन, वो किधर से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, बट हमारा दिन खराब हो जाता है यार, वो पढ़ के हमारा मूड खराब हो जाता है। वो इतनी पावर रखते हैं अपने शब्दों से कि हम भी अपसेट फील करते हैं। सो मैं भी करती थी, ऑफ कोर्स करती थी। When was the last time you actually felt that upset? What did you read that really I just feel when people, I feel bad, I used to feel bad when people were talking about, you know, I gained weight all of a sudden. तो उसका लोग मजाक बना रहे थे कि मैं मोटी हो गई तो उसको लेके, that I don't care about myself, and they did not know कि मेरा वेट बढ़ा क्यों। मेरा वेट खाने से नहीं बढ़ा था, मेरा वेट मेडिकेशंस वगैरह से बढ़ा था, जो मैंने डाला भी था एक दिन स्टोरी पे शेयर किया था मैंने, बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ इट, नॉट बिकॉज आई वॉज एंग्री कि मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, जस्ट बिकॉज कि मैं थक गई थी ये सुन सुन के कि मैं खाती रहती हूँ। तो मैंने बोला भाई दवाइयाँ थी, एंड वो टफ होता है उस वेट को लूज़ करना। आई एम स्टिल डूइंग दैट, मैं अभी भी वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ। सो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अफेक्ट करती है। एंड आई जस्ट फील कि एज एन एक्टर ना, आपको अपने इमोशंस को हमेशा ही कंट्रोल में रखना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, कि मान लो मैं अगर अपसेट हूँ एंड इफ समबडी कम्स एंड आस्क्स मी और फॉर अ फोटो, I have to smile at that moment and I have to give them a picture, because if I don't do that they'll think कि या तो मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं रूड हूँ, मैं मीन हूँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो क्यों ही करना है, क्योंकि आप यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड यू, सो जस्ट लीव इट। 2.5 से 3 साल पहले, अक्टूबर 2022 इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, उससे पहले ही हो रहा था सिम्टम्स, बट आई रियलाइज एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम battling an autoimmune disease. It's an autoimmune induced urticaria. And around the same time, because you said about body weight and the kind of shaming because of medication, तो मेरे को ना hives होते थे। अभी वो hives को बंद करने के लिए the kind of steroids that you have to completely keep on taking, because every day if you are breaking into hives and you are breaking into rashes, immediate solution वही होता है कि आप एक पी लो, मतलब खा लो, right, antihistamine tablets. And around the same time, मेरे से कुछ महीने पहले ही, I knew that Samantha was going through, and you will not believe this is the exact same space where we did the first interview. It's so weird, it's divine intervention. There was this one movie that was coming out, I think Yashoda or whatever, and she had gone for a press meet.
और वहाँ पे ना उनको देख के, बिकॉज उनने चश्मे पहने हुए थे, एंड ऑफ कोर्स autoimmune medications for her were different because she was battling myositis, but it's not about increasing body weight, it's about you can't lose excessive body weight. वो बहुत difficult होता है वो वाले weight को lose करना है. It's not normal fat. Yeah. It's not your regular खाने वाला fat. It's Yeah, not that. yeah. And you know the kind of comments that she's battled and then she responded to, and I was in the auto when I read it. Most of my people around me who didn't know or who would know also, they were like, फॉर एवरीबडी, इंडिया में ना ऐसा है कि जब आप किसी से पहले मिलते हो या तो यू आर टू थिन, अरे तुमने कितना वेट लॉस कर लिया, तुम्हारा वेट बढ़ गया क्या. दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, दे डोंट रियलाइज व्हाट इफेक्ट दे माइट हैव ऑन समबडी गोइंग थ्रू दैट. व्हेन यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ क्राइसिस लाइक दैट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू इंटरनलाइज इट, कि बोल भी नहीं पा रहे हो जब तक आपने बोला नहीं, पर एक तो होता है कि आप ऑलरेडी किसी चीज़ से मेडिकली जूझ रहे हो, उसके ऊपर ये जो कमेंट्स है जो आपको बॉडी शेम के, और आप खुद भी चाहते हो कि आप वेट लॉस हो पर हो नहीं रहा है, तो देयर इज एन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. हाउ डिड यू डील विद दैट? आई ट्राइड यार, मैं बुरा तो ऑफकोर्स लगता था, बहुत बुरा लगता था. एंड बिकॉज मेरा ये भी था कि नहीं यार सुम्बुल, लेट्स जस्ट इग्नोर इट, लेट्स नॉट से एनीथिंग. तो वो काफ़ी मन तक मैंने वो भी किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है. बट आफ्टर अ पॉइंट ना आई वाज लाइक यार अभी बस हो गया ना. मतलब पिछले 4-5 महीना उन लोगों का कंटिन्यू चला, 4-5 महीने में कंटिन्यू मैसेजेस पढ़ रही हो, कमेंट्स पढ़ रही हो. बोला अच्छा चलो, तो मैंने एक दिन फिर स्टोरी डाल दिया, बट दे स्टिल हैवंट स्टॉप्ड. बट नाउ आई एम लाइक कि चलो ठीक है, अभी मैं क्या करूँ. नाउ आई जस्ट विश कि किसी दिन ऐसा कोई एक फीचर आ जाए इंस्टाग्राम में कि आपको हर एक कमेंट का 1 रुपया मिलेगा, तो आई विल बी ओके विद एवरीथिंग. तुम लोगों को गाली देनी है दो बस. बट आज भी होता है वो, देयर आर पीपल हु आर पेड टू ट्रोल, इट्स अ जॉब, डू यू नो दैट? आई नो, बट आई वांट टू गेट दैट मनी ना. हाँ मतलब आप लोग कमेंट करो मुझे चलेगा, बट लेकिन अगर आप कमेंट करो तो आपको 1 रुपया आपका जाना चाहिए. हाँ, और आपके पास अब मेरे पास आना चाहिए, तो मेरा कुछ तो फायदा होना है. वेरी नाइस. बुरा भी आप Love बोलो, मेरा दिन भी खराब हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है. थोड़े पैसे बुरा लगे मुझे चलेगा, लेकिन पैसे मिल रहे ओके. बट what were you battling at that point, if I may ask? आई वाज थोड़ा सा मेरे ना मतलब एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे. आई वाज डीलिंग विद एंग्जाइटी अटैक्स एंड बीपी फ्लक्चुएशंस, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था. सो I consulted with a neurologist, not a therapist, not a psychiatrist, directly a neurologist, and I was put on a medication. And after 2-3 months of medication, they realized कि medicines गलत है. And तब तक में मेरी situation और ख़राब हो चुकी थी. तो उसी बीच में ही वो वेट गेन हो गया अचानक से. एंड उसके बाद फिर एक पॉइंट के बाद देन मेडिकेशन चेंज हुआ एंड आई वाज लाइक कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं खानी है. फिर मैंने थेरेपी चालू की, देन मैं थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन पे आई. एंड उसके 2-3 महीने के बाद आई गेव अप द मेडिसिन कम्प्लीटली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. मैं जब वियतनाम गई थी उसके वहाँ जाने से पहले ही मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ पेशेंट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि एवरीबडी यू नो मेरे जितने भी क्लोज लोग हैं दे नीड टू वॉक ऑन एक्सेल्स अराउंड मी. मुझे ऐसा लगने लगा था कि दैट दे नीड टू मेक श्योर कि मुझे किसी बात का बुरा ना लग जाए या मैं अफेक्ट हो जाऊँगी. तो आई रियलाइज कि सुम्बुल यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस अपने आप ही. तब मैं बाहर चली गई घूमने के लिए. आई ट्रैवल्ड फॉर अ मंथ एंड उसके बाद आई डिड नॉट take any medication. But it's also, you know, it's also related to stress. Everything that happens to our body is actually, I've realized this with whatever I've gone through. Yeah. It's only and only related to stress and emotional lows. Yeah. Did you also feel that way that time, that you were possibly going through something emotionally which triggered this response in you? Yeah, of course. They were, you know, कभी-कभी ना हमें realize भी नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी affect कर रही है जब तक वो हम पे हावी नहीं पड़ने लगती है. एंड मेरे साथ वही हुआ था कि चलो 1-2 दिन कुछ तो मुझे घबराहट सी होने लग गई, कुछ एक जो मैं ट्रिगर अपना फिगर आउट नहीं कर पा रही थी. बट आफ्टर अ पॉइंट वो जब मेरे ऊपर हावी होने लगा, जब वो मेरे काम में मेरे काम को हैम्पर करने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत हो रहा है. एंड ऐसा कहीं पे भी हो जाए, घर पे रहूँ चलेगा, लेकिन सेट पे ऐसा नहीं होना चाहिए. तब फिर माई प्रोड्यूसर्स दे हेल्प मी आउट विद दिस. आई हैव नेवर सेड दिस in any of my interviews. I'm saying it for the first time and I'm feeling very weird. No, it's okay. So my producers on my last show, they helped me उसके साथ हर एक चीज़ करना. They made sure that I'm comfortable on set and now I'm doing very well, much better. But was it difficult to live through those days? Your people, even your producers who gave you that comfort, great, kudos to them. But the people around you who didn't know, did everything get to you at that point? No, or actually, जल्दी उतना मेरा ना ऐसा है कि वो सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है. मेरी मेमोरी के साथ कुछ तो इशू हो गया वो टाइम का कि मुझे याद ही नहीं है
कि वो exactly I remember the panic attacks and everything, but I don't remember what happened after that or before that. So Yeah. it's kind of a blur now. But when I speak about you, you know, मैंने इसीलिए बोला कि you are a unique mix of power and vulnerability. You were sitting when I was speaking to your maker, and I said that he had a wonderful thing to say about you, right? Which I also believe that you are 21, but you can play a 17-year-old. Of course, you can play a 21-year-old. You can also play a 25-year-old, a 27-year-old. There is a certain sense of emotional maturity in you as an artist. Do you feel that it has also come from your life experiences because you've had to grow up so early in your life vis-a-vis your life situations? डेफिनेटली मुझे वही लगता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है वही आपको एज अ पर्सन बनाते हैं एंड आपके जितने भी मैच्योरिटी है आपका जो मतलब वही तजुर्बा जो बोलते हैं ना वो सिर्फ उम्र से नहीं आता है, वो एक्सपीरियंसेस से मिलता है। वो आप 17 साल में ही अगर आपने 25 साल का जी लिया तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है, लेकिन भले आप 17 साल के हो लेकिन आपके पास तजुर्बा 25 साल का एक तरह से। सो बट आई फील जो भी मेरी लाइफ में अभी तक हुआ है आई फील वेरी ग्रेटफुल बिकॉज वो जितनी चीज़ें अगर नहीं होती तो मैं आज ये इंसान नहीं बन पाती जो मैं आज हूँ या फिर जो मैं कल को बनूंगी ये पूरे वक्त निकल जाने के बाद। सो आई एम ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग। But do you feel a lot of your childhood जो होता है बचपन वो गुजर गया in that whole idea of you having to grow up so quickly to be there for your father, to be there for your sister? I feel that when I was doing IMLI, I was around 16 years old at that time. And you know, I was taking care of my sister and I was working for 16-17 hours a day, every day. So उस टाइम पे भी ना ये तो था कि हाँ चलो सानिया का भी ख्याल रखना है, सब कुछ देखना है, बट उसके साथ साथ ना शूट भी कर रही हूँ। बट जैसे ही पैकअप हुआ, भले ही 3-4 घंटे हैं मेरे पास, मैं कितने बार ऐसा होता था मैं सोती नहीं थी, मैं घूमने चली जाती थी दोस्तों के साथ या सानिया को लेके कहीं चली जाती थी। सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग बिकॉज मैंने इतने मज़े किए हैं, इतनी मैंने ऐसी चीज़ें की है जो मैं नहीं बता सकती। बट वेरी फन, कुछ गलत नहीं किया बट कैमरा पे नहीं बोल सकती, इसके बाद बताऊंगी। बट सुंबुल इतनी सी खुशी का प्रोमो मुझे बहुत पसंद है। आई हैव टू टेल यू दैट मुझे ना आई एम अ सकर फॉर दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप ड्रामाज, ह्यूमन ड्रामाज, बिकॉज दिस इज it's about art imitating life, right? Like somewhere, and you feel like a perfect mix to this whole thing. It starts off with such a beautiful thing of you signing your siblings report card as a mother, right? Yeah. You have had a younger sister. I have my older brother who's 10 years older to me. So जितना मेरे पापा ने मुझे नहीं डांटा, मुझे पापा ने कभी नहीं डांटा, but मेरे भाई ने कभी कसर ही नहीं छोड़ी आज भी. So they, you know, whenever you're an elder sibling, you automatic have a maternal or a paternal approach to your siblings. Has that always been the case? Although the difference is quite. Yeah, मतलब इट्स लाइक कि सानिया को मतलब पापा से तो डर लगता ही है, लेकिन उसको मुझसे भी इक्वली डर लगता है या फिर मुझसे थोड़ा और ज़्यादा लगता है। उसको अगर कुछ मनवानी है अपनी बात तो वो पहले मुझे मनाती है कि अगर अप्पी मान गई तो पापा को तो ये मना लेगी, वैसा टाइप का। तो उससे ज़्यादा खौफ इधर रहता है। एंड सो वो है। एंड सानिया के साथ पहले तो हम लोग झगड़ा करते थे जब छोटे थे, बट अभी ऐसे मैं एक लुक दे देती हूँ तो उसको लगता है मैं उससे गुस्सा हो गई, तो दिन में 10 बार वो पूछती है डू यू लव मी। So now it's become like that, which I find very cute and very annoying at some point. But it's like yeah. So you are not a person who can express love very. मैं ऐसा मैं बोल बोलती के, नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं कुछ ना कुछ ऐसे कर देती हूँ। मैं थोड़ी सी मतलब इवन दो मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत मूडी हूँ। मैं बात कभी बहुत सारी करूँगी और कभी एकदम शांत बैठ जाऊँगी एंड मैं फिर मतलब बहुत थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है। लाइक You're an ambivert. I don't know, I think I'm moody. Not really? Not even ambivert. So सानिया मतलब मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, I struggle with words and I feel like मैं समझा नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। So मैं चुप रहती हूँ एंड मैं जेस्चर्स में थोड़ा बहुत if I love somebody और सानिया पापा किसी को भी प्यार जताना है दिखाना है तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। बट जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला कि एक इंटरव्यू था एकता कपूर का जहाँ पे उन्होंने बोला है कि विमेन ऑन टीवी आर आइडलाइज्ड एंड मेन आर फैंटेसाइज्ड, व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन थिएट्रिकल फिल्म्स और फिल्म्स इन जनरल. Do you agree to that? Because over the last few years, whatever roles you've done, it's been very progressive
this is also such a progressive take on life, right? It is a sister who's taking on the responsibilities of a mother in the absence of a mother, right? Which possibly you have also done in your real life. I want to know, do you feel that TV gives more power to women and female forces? Yes, they do. They definitely do. मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी जो मैंने पहले भी शोज किए हुए हैं. Absolutely. It's just that कि ये वाला शो उन दोनों से बहुत Different है, yes. एंड नॉट दैट कि वो एम्पावरिंग नहीं था या ये एम्पावरिंग नहीं है, दोनों एम्पावरिंग है लेकिन बहुत डिफरेंट वेज में. कि वहाँ पे जो थी काव्या हो गई, इमली हो गई, उनका सपना था कि मैं पढ़ाई करूँ, कुछ बड़ा बनूँ, फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूँ. अन्विता इसमें है कि अन्विता ने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं. Yeah. उसको टाइम ही नहीं मिला. उसको जब तक उसने थोड़ा सा होश संभाला तब तक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी. एंड नॉट दैट कि उसको उसके लिए वो बोझ नहीं है, वो उसके लिए नॉर्मल है, वो उसकी लाइफस्टाइल है. वो ना हो तो उसको शांति लगती है. जब तक वो घर पे उठे ना, घर पे चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है तो उसको मतलब अजीब लगेगा. अगर शांति मिल गई तो, अगर उठी सब चिल्ला रहे हैं, इधर उस भाग रहे हैं, बर्तन गिर रहे हैं, सामान गिर रहे हैं, तो उसको लगेगा ओके इट्स अ गुड मॉर्निंग. सो इट्स लाइक दैट. सो दोनों एम्पावरिंग है बिकॉज ये लड़की पूरा घर संभाल रही है जस्ट बिकॉज उसके जो सपने हैं वो ऐसे हैं कि उसकी फैमिली के पास हमेशा खाना रहे खाने को, कि उसकी फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर होपफुली समडे उसके पापा को रियलाइज़ हो कि उसकी फैमिली उसके लिए इतना कर रही है, देन यू नो ही गोज़ बैक टू नॉर्मल, ही सोबर्स अप एंड एवरीथिंग. तो ये उसके ड्रीम हो सकता है जो कि बाकी मेरे दोनों कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे कहीं नीचे है या फिर उनसे बहुत डिफरेंट है. But as Sumbul, do you kind of veer towards such characters? Do you think that because of how you are as a human being, as Sumbul Tokir, you always veer towards such strong women roles that you cannot play this damsel in distress? Like I'm saying कि जैसे आपने कहा कि अन्विता की कहानी शायद रेगुलर लड़कियों से अलग हो, आज के ज़माने में वो लगे कि सपने को क्यों वैल्यू नहीं दे रही है, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वेयर यू आर एटलीस्ट थिंकिंग लाइक यू आर टेकिंग अप द रोल ऑफ अ मदर बट फॉर योर सिबलिंग्स. बट सिमिलरली डू यू फील लाइक यू कैन नेवर डू अ रोल जहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस हीरोइन बनना है और हीरो आके आपको बचा रहा है और कुछ है ही नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर एक कैरेक्टर में जो भी मैं करती हूँ आई नीड अ लिटिल इमोशनल डेप्थ हर एक कैरेक्टर में. वो ऊपरी वाला वो मुझे नहीं लगता कि तुम बैठे रहो, तुमको कोई पकड़ के लेके गया, हीरो आके बचाया. आई कांट डू दैट. फिर मैं ना मैं कर तो लूंगी, मान लो कि अगर किसी दिन, वैसे तो नहीं होगा बट अगर कर भी लिया I'll feel sorry for myself. I think I'll be like कि सुम्बुल, why you should be fighting, you should be jumping from one building to another. That's true. So I think I'm somebody as an actor who needs a little emotional depth in any of my characters, and not that कि वो glamorous roles या फिर जैसा आप बोल रहे हो वो कुछ गलत है, but Absolutely, it's not wrong. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ तक मैं अभी पहुँची नहीं हूँ. It could be a mix of both. That's what I'm trying to say. Yeah, it could be. It's not that कि I can't do that. It's just that कि I've never thought about it in that Yeah. way. I need depth. I need emotions. That because I feel that is my power. You know, Itti Si Khushi again is a show where art effectively mirrors life, right? When you see Anvita's story, do you somewhere relate it to your own? Because there was a point of time when you were also very young when your parents separated. Did you even realize it at that point or at that age what was happening? Did you question it? मैं ना कुछ ज़्यादा ही यंग थी मुझे लगता है, तो मुझे कभी समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है. एंड अगर मैं थोड़ी और बड़ी होती तो शायद मुझे ये इमोशनली और अफेक्ट करता. लाइक नाउ मुझे मेमोरीज उतनी क्लियर ही नहीं है स्टार्टिंग की मेरे चाइल्डहुड की, बिकॉज दे सेपरेटेड व्हेन आई वाज अराउंड 6 years old. तो मुझे तो आधी चीज़ें याद ही नहीं है. तो आई जस्ट फील कि you can't miss something which you don't remember or you never had. Like I know that I was loved with my mom, by my mom and my dad, but वो ऐसे पॉइंट पे था जो मेमोरीज हमारी नहीं रहती हैं, ब्लर हो जाती हैं. सो आई हैव वेरी कुछ ऐसे वेरी ब्लर मेमोरीज, बट कुछ हाईलाइट्स है मेरे दिमाग में मेरे मॉम के साथ के, मेरे डैड के साथ के, तो खैर है. बट आई फील कि अगर मैं थोड़ी और बड़ी होती तो शायद वो मुझे इमोशनली और अफेक्ट करता, या अगर किया होगा तो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है. बट जब होश संभाला, जब आप बड़ी होती गई, तो आपने कभी इस चीज़ को क्वेश्चन किया? स्टार्टिंग में किया मैंने कि लाइक थोड़ा सा ऐसा था कि क्यों, कैसे, मतलब क्या हो गया. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट रियलाइज कि आई डोंट वांट टू नो. I don't want to know it. I don't want to know what went wrong. I don't want to know anything. I'm just happy that my dad is happy here and my mom is happy somewhere.
मैं उनसे भी मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम कट ऑफ कर लिया है. सो एवरीवन इज़ हैप्पी एंड दैट्स व्हाट यू नीड. अगर वो दोनों साथ में खुश नहीं है और अगर अलग अलग खुश है तो वैसे ही रहे. इट्स ओके. Yeah, two happy homes is always better than a broken home, like they say. But at that point, you were 6. Your sister was 3 or 2, if I'm not mistaken. 3, 4. 3, right? Did you somewhere have to grow up just because of that? Because कभी-कभी क्या होता है कि you know one of the like होता है elder siblings में that you suddenly have to cater to everybody and you have to like somehow cushion and you feel protective no matter what the age is. You know, actually उसके 1-2 साल के बाद when my sister turned 4 or 5 years old, so it's very funny that because when I was a kid, मतलब और जब बहुत छोटी थी, मैं थी 7-8 साल की, तब मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं डरती थी, मैं बात नहीं करती थी किसी से भी. एंड मेरी बहन दादागिरी करती थी. So she used to save me from the शैतान boys of the मोहल्ला and everything. कोई मुझे डरा के जा रहा है तो वो पत्थर मार के आएगी या जूता निकाल के उसके पीछे दौड़ जाएगी. गली में तो लड़कों को दौड़ाएगी. वो सानिया करती थी. सानिया मुझे बचाती थी. मुझे उसको तब प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं Wow. पड़ी. सो सानिया मुझे बचाती थी. बट नाउ अभी जब हम बड़े हो गए हैं तो अभी हम लोग ऑफकोर्स लड़कों से ऐसे लड़ाई नहीं करते बिकॉज हम बड़े हो गए हैं. बट नाउ जो हमारे इश्यूज होते हैं वो थोड़े और इमोशनल होते हैं एक दूसरे को लेके भी, अपनी अपनी लाइफ को लेके भी. सो नाउ अभी मैं थोड़ा सा लगता है कि चलो मैं बड़ी बहन हूँ एंड आई फील लाइक कि आई नीड टू मेक हर फील हैप्पी एंड आई नीड टू मेक हर I need to protect her at any cost and I would always do that. But the beauty is that whatever Varun sir's character is in this show is absolutely different from what your father has been to so both of you. मुझे किसी ने बोला था कि आपके मतलब आपकी भी सिंगल फादर है, इसमें भी सिंगल फादर है. मैंने बोला हाँ बट मेरे पापा सोबर है. So she was also laughing. मैं बोला of course. So I can't, even if it is a single father, I just can't think of relating it at any point because no, it is nowhere close to what my father is. I'm not gonna do that. But so much must have gone through him. Today also you're saying such beautiful things that when you come back home, he's the one who opens the door and we've seen that bond. Like, you know, your father is the center of your universe, if I may say that. At that point, imagine, हम लोग ना usually single parents की जब बात करते हैं ना, तो ideally वो दिमाग में आता है कि single parent तो honestly एक माँ ही होगी. होता है, मतलब लोगों की सोच वहाँ जाती ही है because we live in a society that has made us believe or think like that. But having your father take those dual roles, what are those days where as a child you saw him balancing everything and beautifully doing it? Do you remember those moments today? Every day. Whenever I think about it, I still remember that हम लोग दिल्ली में रहते थे in our, it was small apartment and वहाँ पे सुबह सुबह पापा हमको उठाते थे and हम दोनों को नहलाते थे, फिर हमें नाश्ता कराते थे, हमें कपड़े पहनाते थे, हमारे बाल बनाते थे, टिफ़िन पैक करते थे और हमें छोड़ने के बाद हमें रिक्शा लेने आता था स्कूल के लिए. हमें छोड़ने के बाद वो पूरे घर की सफाई करते थे, फिर अपनी अकेडमी जाते थे और जब तक वो अकेडमी में है तब मैं और सानिया उस टाइम पे स्कूल से घर आएंगे एंड घर आने के बाद तब तक पापा भी अपना अकेडमी से ब्रेक लेके घर आएंगे क्योंकि खाना वो सुबह बना के जाते थे. फिर हम साथ में लंच करेंगे, उसके बाद फिर मैं और सानिया और पापा हम तीनों साथ में अकेडमी जाएंगे. थोड़ा डांस करने के बाद फिर मैं और सानिया वहीं से ट्यूशन चले जाएंगे और फिर पापा वापस घर जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर मैं और सानिया ट्यूशन से वापस आएंगे, हम खाना खाएंगे और फिर पापा पूरे अगले दिन जो भी स्कूल का यूनिफॉर्म है दूसरा है तो उसको आयरन करके रखेंगे या कुछ भी है, कपड़े लगाएंगे रात को मशीन. सो ये हमारा नॉर्मली रूटीन रहता था. आई स्टिल रिमेंबर एकदम क्लियरली. When we speak about single mothers, we always speak about the sacrifices and the challenges that they have gone through, right? Similarly, because feminism is about equality, right? So when you talk about your own father, do you think that the amount of sacrifices that he possibly would have made in his own life, he could have gotten married way earlier, but he chose not to. I think there was a point where, I don't know if it's in an interview where you spoke or he spoke or your Bare Papa spoke, where you guys shifted from Madhya Pradesh or Uttar Pradesh to Delhi, if I'm not mistaken. Madhya Pradesh to Delhi. And apparently he did that to protect you guys from any kind of comments or anything that came from. There's one thing which I really like about my parents, not just my dad but my mom too, that they, no matter what was happening in their marriage, they never fought in front of us.
They never argued in front of us. And when I found out that they are divorced, but they were still, hanging out together. मम्मा आ रही थी कभी कभी ऐसे मिलने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने कभी झगड़ते हुए देखा ही नहीं मम्मी पापा को. वो तो मुझे एक दिन पता चला एंड ओके, तब तक मुझे समझा नहीं. फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ओके ऐसा कुछ हो गया है. सो दे मेड इट very normal, वेरी इजी ऑन अस. easy, yeah. तो हमने कभी ऐसा झगड़ते हुए नहीं देखा, हमने कभी चिल्लाते हुए चीखते हुए नहीं देखा, विच आई फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट, टू बी ऑनेस्ट. या एक चीज़ जो है आपकी बॉन्ड है इतनी अच्छी आपके पापा के साथ, तो कहीं आपने बोला है कि मेरे पापा को अगर मेरा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया या पार्टनर पसंद नहीं आया तो मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी. ये कब बोला था मैंने? कहीं पे तो बोला. देखो कोई एक इंटरव्यू का हेडलाइन है. क्या बात कर रहे हो? या दैट आई. मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? नहीं, बट ऑफ कोर्स नहीं, बात सही है, कुछ गलत नहीं बोला एंड आई स्टिल अग्री. बट उसके साथ साथ ये कि if I really love that person, then I will try anyhow to make my dad agree. But it's not that कि मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ कर सकती हूँ. उनकी मर्जी से शादी तो नहीं करूँगी उनकी मर्जी के बिना. बट ऐसा कभी हुआ है जिंदगी में ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपने अभी कहाँ है? कोशिश किया है कि पसंद करे पापा? मैं जिंदगी में कोई रिश्ते नहीं रहे? अरे पर पापा तक, मैं पापा को थोड़ी बताऊंगी पापा ये लड़का है, मैं इसे शादी करने का प्लान 21 साल की हूँ यार. शादी नहीं, but जब पसंद है. मेरा जो एक बॉयफ्रेंड था जब मैं स्कूल में थी, that my first ever boyfriend when I was in school, that puppy love kind of. So मैंने पापा को कुछ नहीं बताया था of course, पर जिस दिन ब्रेकअप हुआ मैं सीधा पापा के पास गई, रो रही थी, पापा को बताया पापा मेरा ब्रेकअप हो गया. पापा ने ऐसे लुक दिया है मुझे, क्या? क्योंकि उनको मुझे पता ही नहीं वो डायरेक्टली आके ब्रेकअप हो गया. क्योंकि मैं जस्ट घर आई थी, मैं शांति में अंदर गई, बाथरूम में गई, जाके रोई शावर में, और फिर बाहर आके पापा के पास बैठी. हाउ ओल्ड वाज आई वाज अराउंड 14 years old उस टाइम पे. तब पापा के पास आके रो रही थी और पापा मुझे चुप करा रहे, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आगे और अच्छा रहेगा, कुछ नहीं होगा, अरे भूल जाओ, वो सब पापा समझा रहे थे. सो आई थिंक कि हाँ वो एक चीज़ है, आई डोंट इवन नो कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट आई फाइंड इट वेरी क्यूट. ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साथ एक तमीज़ का एक लाइन, बाउंड्री लाइन ज़रूर होता है, बट समटाइम्स यू आर जस्ट फ्रेंड्स विद दैट person, right? You're friendly with your father. This show actually speaks about, like I said, the universal language to love, according to me, is acceptance, right? And I think it is also something that you guys have had in your family, like whether it's him, whether it's your sister, whether it's you. Today you are a complete family. You have, when he got married, there was a beautiful story that you put out and a beautiful post that you put out, and we've seen those pictures. And it speaks of acceptance. Privilege वो होती है, पता है, कि जब हर चीज़ में प्यार हो. Do you accept that? Yeah, definitely, of course. मैं अभी पता है हम रील्स देखते हैं, काफ़ी सारे रील्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आई जस्ट विश माई डैड कुड जस्ट हग मी वंस एंड टेल मी दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी. एंड ये सारी चीज़ें पढ़ के ना मुझे इतना दुख होता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स को थोड़ा सा अफेक्शनेट होना चाहिए. भले ही वो कितना कुछ करे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि यार हम इतना कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तुमने क्या किया. सो वो जोन से थोड़ा सा निकल के अगर आप उनको थोड़ा सा फिजिकली भी अपना अफेक्शन दिखाओगे ना, दैट चाइल्ड रियली नीड्स दैट. थोड़ा सा आपका प्यार, just to let them know that you are proud of them. Yeah. Once in a while, because जैसे कि मेरे डैड हैं, पापा कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पापा मेरे काम की तारीफ करते हैं, बट आई वेट फॉर दैट. एंड जिस दिन पापा तारीफ करते हैं ना, मेरा पूरा महीना अच्छा जाता है. इस शो के लिए तो मिलने वाला है तारीफ, इंशाल्लाह. फॉर श्योर. अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो यही मिला है. अभी तो चालू होने हो सकता है. हाँ, but that's his way of making you feel better. Yeah, of course. I don't feel bad about it, and I really like that criticism, and it's not that कि मुझे ये नहीं लगा देख के, मुझे बोला हाँ पापा. It's just that कि मैं पापा के validation का wait करती हूँ. Yeah, the usual definition of your father and anybody's father having a second marriage, and the whole idea of a mother, second mother, and it becomes a little bit of a problem because that is what we have been fed. But you have a very nice mother who, do you feel like she's come and filled in a certain amount of gap? I just feel that I did not need a mother.
My sister we didn't need a mother because we are now grown up. Yeah. हमें जिस एज में मॉम की ज़रूरत Yeah. थी एक्चुअली वो हमारे लिए डैड ने फिल कर दिया था. So we didn't need a mother, but my dad needed a companion Yeah. for his life. How sweet, how Because beautifully put. I know and my sister knows that we are, no matter how much we love him, we are not always gonna be around. They're gonna be, you know, some moments I might get married someday, अगर हुआ तो, and my sister might get married someday, and हम लोग पूरे टाइम नहीं रहेंगे ना, so he needs someone. So it was just all about him, not at all about us. How sweet, how beautifully, you know, there are certain times when you I can't even say that you're 21 because there is an emotional maturity that actually surpasses the age that ये you पूरा have. वो पेन है जो लाइफ में मिलता है जो आपको बहुत डीप इंसान बना देता है. एंड आई थिंक कि लोग भले ही बोले कि यार तुम यार 21 साल की हो, तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया, दे फील यू नो थोड़ा सा Sympathetic, sympathy वाला, yeah. थोड़ा सा वैसा फील करते हैं, विच आई कम्प्लीटली अग्री विद. मैं भी वैसा ही फील करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे एक बहुत मैच्योर इंसान बना दिया एंड आई एम हैप्पी विद इट. But I'll tell you something, I feel like I've seen you treat and talk to people around and I've seen you like off camera. I don't think you're sympathetic, I think you're empathetic. There's Yes, a yes, huge, yes. huge I'm difference. empathetic. Yeah. Yeah. And people who have a lot of empathy and has gone through whatever situations, everybody goes through different situations, your story, our journeys will be different, but it's still a journey, right? At the same time, रिश्तों के लिए आपका जो भाव होता है या तो बेटर होता है या बिटर होता है. कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का, दोस्ती का, how important is it for you? Because today we are talking about a show which actually talks about relationships. How important are any kind of relationships? या अगर दोस्ती टूटती है, रिश्ता टूटता है, तो आपको कितना अफेक्ट करता है? आई थिंक मेरे लिए ना फ्रेंडशिप्स एंड यू नो एवरी रिलेशन इन माई लाइफ उसके बहुत डिफरेंट मायने हो गए हैं, उसके बहुत डिफरेंट, मैं एज अ पर्सन भी बहुत चेंज हुई हूँ आफ्टर बिग बॉस स्पेशली. तो अभी आई हैव लाइक वेरी फ्यू पीपल इन माई लाइफ जो मेरे दोस्त हैं, करीब 6-7 दोस्त हैं मेरे, एंड मेरी फैमिली है, एंड दैट्स इट. Anybody is an actor from those 6-7 people? ऑल ऑफ देम. Great. हाँ, आई फील बैड अबाउट इट. इंडस्ट्री से बाहर दोस्ती नहीं है. मतलब आप बचपन से इस इंडस्ट्री में अभी क्या करें? हाँ, This has लेकिन been नहीं, like a school for you. But then I, you know, when I think about it, and I'm always like to my friends also कि तुम लोग सब लोग एक्टर हो यार. बोलते कि तू घर से निकलना बाहर, जब तक बाहर नहीं जाएगी तो नए लोग कैसे मिलेंगे. बोले नो, नए लोग नहीं चाहिए. Ambivert. Yeah. Ambivert. Ambivert alert. I used to think people made me feel till I was 30 that I'm an extrovert. I personally believed I'm an extrovert. But in the last 3 years, I've realized I'm not an extrovert, I'm an ambivert. I am, of course, polite and nice to people because that's Yeah. what my upbringing is, just like yours. But I don't think I'm very comfortable around everybody. Yeah, same. Even I don't feel comfortable around anybody. And there's one more thing which that I don't like being touched at all. I really don't like Physical it. touch you Yeah, don't no. I don't touch. ऐसे बोलो ना दूर से. So मेरा वैसा है, and वो भी बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ है. मतलब like जो मेरे क्लोज लोग हैं, मैं उनको एकदम ऐसे प्यार से रहूंगी, आसपास उनके घूमती रहूंगी, लेकिन उसके अलावा मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है. Ambivert. So तो मैं थोड़ी सी I have stopped defending myself now. But Okay, I'm like that. But you said that something shifted in you after Big Boss. Yeah, because I became a little more reserved. अपने आप में ही मैं उतना भी, मैं वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलती अब तो. पहले मैं बहुत घूमती थी. I like to be in my space. मुझे उससे बाहर निकलना पसंद नहीं है. अगर बिना काम के बाहर जाना है तो धक्के मार के निकालना पड़ता है मुझे बाहर, क्योंकि मैं नहीं जाती. So वो है. एंड नाउ आई हैव वेरी फ्यू पीपल इन माई लाइफ, बट आई नो कि अगर इनमें से किसी के साथ भी मेरा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, आई एम गोना बी वेरी अफेक्टेड बाय इट. But when you speak about Big Boss, because we started with an apology, I have to say this, that do you somewhere feel that you said that you spoke about Big Boss, right? Because I started off with an apology, do you sometimes feel you were the highest paid contestant on Big Boss? Let's be honest. You were the youngest contestant of that season on Big Boss. I don't know if you were the youngest across seasons, possibly could be. Do you feel that you got judged too much for just being emotional? And when I say that, I'm sitting right in front of you. You can say whatever you want to me, because there was a point I have supported you wholeheartedly. Okay, so in the beginning, my tweets are like, how dare you guys treat Sumbul like this? But then after a point, because of everything that was being shown, Big Boss is not a scripted but a very well edited show, is what I've realized.
I also felt like, why is this? Why is this? You know, it happens, right? I've judged Nimrit also actually, and I love her. Imagine. So I want to know that, do you think that you got judged a lot for your emotion, for the emotional quotient that you have, for your EQ? Of course, a lot. And I just feel, I still wish कि if there is, you know, अगले अगर कोई मैं I don't follow Big Boss, but मेरी एज के अराउंड, अब तो मैं 21 साल की हूँ, बट अगर 18-19 साल की कोई लड़की या कोई लड़का आता है, I would really wish that people would be, you know, a little sensitive towards them, because it affects those young people in a very different way. Like you can't imagine how hard it hits a person. कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे हो, and the things that they've said about me, you know, people said about me when I was in Big Boss, it was very hurtful, very hurtful. Like it changed me as a person. तो it's like कि उतना ना करो, थोड़ा सा तो एक मतलब थोड़ा सा इंसानियत रखो, बस उतना ही काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. But you know, following that, there were a lot of reports. When you speak about today that you have had friends, and if any of your friends, the friendships break, it will become a problem. That time there was a friendship that got affected, and then having to answer to everybody from both sides. Did that come to you ever? Like, did that get to you ever about Faman basically? No. I actually don't know how to answer that question. It's just that कि life goes on, and some things, you know, they, हर एक चीज़ की एक टाइमलाइन होती है, एक किस्मत होती है कि चलो यहाँ तक था, लेट्स जस्ट लीव इट ऑन अ गुड नोट. बस उतना वहाँ पे उसको छोड़ दो, लेट्स उसको डोंट ओवरडू इट. Yeah. सिंपल. इतनी सी खुशी नाम है, तो जाते जाते बस ये पूछूंगा कि what is it? What are those 3 things that can instantly put a smile across your face, even on a day you're being moody? चलो. फूड सबसे पहले तो. What is it that you love? पानी पूरी. I lovely. love pani puri. I would sell all of my friends for pani puri. That's a very cheap price to sell your friends for. No, just one pani puri, not a plate. Then even cheaper to sell your friends for. So I have 5 रुपए में आपने बेच तो दिया. मेरे 6-7 तो दोस्त एक प्लेट आएगी. Okay. For every friend you get 1 pani puri. चलो डन. नेक्स्ट वाला इंटरव्यू हम लोग खाने पे करेंगे पानी पूरी के साथ. I'll introduce you to फुचका. कब मिल रहे हो बताओ फिर. You please आप मुझे बताइए कब मिल रहे हैं. Yes. Yes. And the second thing would be my cat. I'm going मतलब मेरी फैमिली के अलावा बोल रही हूँ, because family is like of course सबसे basic, and my cat, and then going on a drive रात के टाइम पे. Wow. That is like one of my most favorite things. जब भी मेरा मूड खराब है या फिर you know मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो मैं बस पापा को बोलती हूँ कि पापा मैं बस थोड़ा गाड़ी घुमा के आती हूँ, एंड मैं ऐसी हाईवे पे निकल जाती हूँ घूमते फिरते, और फिर घर आ जाती हूँ. Wow, lovely. जाते जाते यही बोलूँगा सुम्बुल that I was just discussing, I don't know if you were there that time, but I was discussing with Varun sir and Goldie that you are a very talented actor, right? And people who have seen you even in an Article 15, they have always spoken about you, you know, in the reviews and everything. Somehow I feel like TV has given you a lot. TV has given you credit, and TV has also given you powerful roles. Do you sometimes miss the same kind of recognition that you deserve and that you're worth from films? I just feel कि at this moment I don't think too much. तो movies करना of course मेरा dream है, and I want to, like I really want that, but I feel there is I've never expected to come this far also. I never thought about it. I had dreams, but मुझे नहीं लगा था कि इस टाइम पे मैं यहाँ पे होंगी, and I don't wanna say कि मैं you know वहाँ पे कहाँ तक पहुँचूंगी या क्या होगा. Let's just see what happens. But does it pinch you as a person when you're so talented, and when people say that you're talented and you've been so good? Be honest. Like मतलब कैसे? Just say you deserve films. Everybody who's watched you perform on TV, on any in the films also, and then they feel that you deserve it. But when you know that you're worthy of something, but you are denied of that opportunity, does it pinch you as an artist? It doesn't pinch me. It's just that कि मुझे जो चीज़ थोड़ी सी ऐसी लगती है, just that कि when you are, you know, आपको जब टीवी पे एक एक्सपोजर मिल गया है, तो उसके बाद आपको एक ऐसा टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि ये टीवी के एक्टर है, तो आपका काम भले कितना अच्छा क्यों ना हो, आप हो टीवी के एक्टर. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, बट
क्या कर सकते हैं, you can't change everything. But all I'll say is that stay the same. People who love you for who you are will continue loving you because of that authenticity, and people who don't love you or might have had judgment. Okay, it was never like I never loved you, I really loved you. Maybe I had some preconceived notions which I was wrong about. One day, just like me, they'll realize that they were wrong because you will continue being you. That's the beauty of that's so Sumbul sweet. Tawqir Khan. Thank you so much for doing this, and so many things unspoken that were spoken in this, and hope to see you soon. Yes, definitely. And hope to have a longer association, and hopefully a friend, become a friend someday, where you can say whatever you want without any judgment, because I think you are a really, really lovely soul, pure soul. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.